Kerala BJP chief Rajiv Chandrasekhar on Wednesday criticized the Congress party for allegedly erasing former party president Chatur Shankaran Nair from its history. Do you agree that Mr. Shankaran Nair hasn't received the credit he deserves? And Karan, do you think this film should now become government should declare this film as tax-free? So the first question was with me, Yes. right? Yeah. See, I'm not a historian, I'm just an actor. What somebody is saying, what any politician is saying, I'm not going to get into that. I just made this film. I just want people to realize what happened, what according to the book we made it, whatever I understood, whatever जो कहानियाँ मैंने अपने पापा से सुनी, अपने डैडी से सुनी, उन्होंने अपने डैडी से सुनी, उस सब चीज़ों का ये अमेलगमेशन है, पूरा का पूरा ये पूरा बनाया हुआ है. और इसके ऊपर मैं ये किसी ने क्या बोला ये पॉलिटिकल चीज़ों I don't want to get into it. Karan, he wants. हाँ जी. I feel, something that a film deserves will always come its way. So I believe if it has to get the tax-free status, that will only happen when people will see the deep impact and resonance of the material. The fact that it's such an honorable film, and it's such an honorable film with such an engaging narrative that you will watch it beat by beat at the edge of your seat. So I feel eventually जब होगा जो होगा वो फिल्म की नसीब में होगा, और फिल्म की नसीब तब चमकेगी जब सबको फिल्म अच्छी लगेगी. तो उसके बाद अगर हमें टैक्स फ्री स्टेटस मिल जाए तो सर आंखों पर. But I feel like a film should get what it deserves, and I hope and pray that the film does. Hello everyone, to your left. हिंदुस्तानियों से माफ़ी मांग सकें. नहीं, हमारी कोशिश तो रहनी चाहिए ना, चाहे वो कितनी सॉफ्ट पावर हो या कितनी हार्ड पावर हो, जो भी है, जैसा भी है, हमारी कोशिश है. जब मैं बहुत सारी और भी फिल्में बनाता हूँ, वो सिर्फ एक कोशिश रहती है. आज टॉयलेट भी ले लो, टॉयलेट एक प्रेम का था, वो कोशिश थी कि हर घर में एक शौचालय होना चाहिए. वो फिल्म आज भी सरकार कई जगहों पे, कई गांव में, कई जगह पे ये फिल्म फ्री दिखाती है. पैडमैन थी, सैनिटरी पैड के ऊपर फिल्म बनाई थी. वो एक पावर है कि एक बेटी अपने बाप से बात कर सकती है सैनिटरी पैड के बारे में, कि उसे कह सकती है कि पिताजी जब आते वक्त मेरे पीरियड शुरू हुए हैं, आप पैड्स ले आइएगा. ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं. तो इसमें भी मैं समझता हूँ, चाहे वो जितनी भी सॉफ्ट पावर हो, छोटी पावर हो, जो भी हो, ज़रूर ये होता है कहीं ना कहीं किसी को जाके कॉन्शियस में लग सकती है. हम वेट कर रहे हैं कि किसी को लगे ये बात. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. इन्होंने जनरल डायर का रोल प्ले किया है. इन्होंने मुझे एक बात कही थी, जब इनको भी सब पता चला, और इनको तो काफ़ी कुछ पता था जनरल डायर के बारे में, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी, ही वॉज अ बीप होल, दैट्स इट. अब आप समझ लीजिए क्या बोला होगा. सो ऐसे मैं बताऊं, बहुत सारे अंग्रेज़ों को, even I'm talking about Jennifer also. Yes. She's my coach, and like she's a British girl, and she knows about it. She's been there, so they all feel for it. So Jennifer, when we were reading the script to her, she had tears in her eyes, and she had tears in her eyes, and she had tears of anguish that she didn't know that this is what happened. And on apology, I would like to say one thing. General Dyer fired upon innocent people. But what did the government, the crown, the empire do? They tried to protect him. They labeled the people as terrorists. So it was at a government level that everyone tried to protect him. So when the conversation of apology comes up, errors are made, but the government can never support and label innocent people as terrorists. So that needs to be rectified. Definitely. And अक्षय सर, ये किरदार कितने दिन तक आपके साथ रह गया, या फिर नहीं, बहुत जल्दी आप उससे बाहर निकल गए थे? मतलब अभी रहेगा या नहीं, शूट के बाद, या शूट के बाद, या जस्ट शूट के बाद तो अभी तक चल ही रहा है. ऐसा नहीं है कि किरदार मैं कोई प्ले करता हूँ, उसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद जो भी होता है उसके बाद भूल जाता हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. आज भी मेरे को मौका मिलता है. मैं बहुत सारी जो पुरानी फिल्में हैं मेरी, उसके बारे में हमेशा गुफ्तगू करता हूँ, हमेशा बातें करता हूँ लोगों से. And I'm sure ये किरदार सबके साथ भी रहने वाला है जब हम देखेंगे फिल्म को. लेकिन we'll take 2 more. बहुत सारी जो किताब हैगी है, द मैन हू शुक द एम्पायर, वो किताब ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ सारा कुछ लिखा है. और
इस बंदे ने मेरे नाल करीबन 2-2.5 साल मेरे नाल ही गुजारे ने आई लाइक माई वाइफ यूज टू से गेट आउट टू हिम लाइक प्लीज गो अवे नाउ मतलब ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ प्रोड्यूसर और को राइटर हम ਕੋ साथ ਰਾਈਟਰ में ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਰ ਆਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਸ sorry well the whole thing is the most surprising thing is the history don't tell us what we actually need to know. That was very surprising. And there are many things you yourself, all the people of India would be surprised at what exactly was happening. So everything was a surprise. Everything, the detail, every detail is being taken care of, and it is going to be a very surprising thing what was happening. Yeah. Hello, Ananya. Yeah. ग्रॉक ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ AI? ਹਾਂ ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ AI ਦੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ I think I may say my director is more intelligent than AI. Oh. Okay, he has written it very beautifully as a screenplay. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ I want to tell everyone this is his first movie. I'm sure you know it. He by profession is a lawyer. Cambridge, right? Harvard. कोई भी है गलती हो गई सॉरी हार्वर्ड कैम्ब्रिज में ही है मतलब उस जगह का तो मैं गलत नहीं बोलिया फिर है क्यों हंसे तो फिर ठीक है ओके सो एज यू सी मतलब बट ही wanted to do this film first and he gave up his profession. He wanted to be a director and this first film he wanted to उन्हें क्या सी कि मैं जलियांवाला बाग दे उत्ते पहली फिल्म बनाना चाहना. और मैं ये कहना चाहूँगा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जब आप टर्मिनोलॉजी देख लो तो क्या कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उससे कौन लड़ सकता है आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही रहेगा हमेशा. Hello. Yeah. Ananya, my hearty congratulations. You know, give it up for him. The reason being, every single time we see him on the big screen, you know, वो कुछ कर जाते हैं. Sir, अक्षय सर, एक छोटा सा सवाल कि जब, of course, we know you give it your all हर बार जब आप कुछ कैरेक्टर निभाते हैं, but जब देश की बात होती है, you know, इस तरह के किसी व्यक्ति की बात होती है, तब वो एक्स्ट्रा कितना क्या आता है, प्लीज उसके बारे में बताइए. ऐसा है कि नमस्कार सारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब यहाँ आए, सुबह सुबह आए और अनन्या पांडे भी आए, जोरदार तालियां उनके लिए. वैसे आपको बता दूं वो शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से सीधे आई है, सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू वेरी मच अनन्या. वो भी हमारी फिल्म है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता. अगर किसी और की भी होते तो भी क्या कह लेते. So, अच्छा तो हम बात कर रहे थे जलियांवाला बाग. ये जो कहानी है इट हैज़ अ वेरी स्पेशल मीनिंग टू मी. मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, अभी आप यहाँ फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि मेरे फादर अमृतसर से हैं थे और मेरे ग्रैंडफादर ने ये जो जलियांवाला बाग का पूरा हादसा हुआ था तो उन्होंने इसे देखा है और वो उस वक्त थे और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियाँ सुनाई थी इसके बारे में और मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी. तो ये जो कहानी है मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है. तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल थिंग विद मी. मेरे जहन में, मेरे दिमाग में ये हमेशा कहानी थी. तो जब मुझे करण त्यागी साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी तो उसी वक्त मैंने अपना फ़ैसला कर लिया था और कहा था कि ये फ़िल्म ज़रूर करेंगे. तब एंड मैं करण जौहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये फ़िल्म में मुझे दी और मुझे मौका मिला इसके अंदर काम करने का. बाकी that's it. Thank you so much, sir. Ananya, I have a quick question. क्या फर्क लगता है जब बात देशभक्ति की आती है? सॉरी वापस बोलना, क्या कह रहे हैं? इस समय की जो सोशल मीडिया जनरेशन है, फॉर एग्जांपल हम जैसे जेन ज़ी जनरेशन कहते हैं, और उस समय की जो युवा पीढ़ी थी, आपको इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है जब बात देशभक्ति की आती है? उस वक्त जो जितना
बिकॉज जैसे अनन्या ने कहा कि फ्रीडम उसका वैल्यू उन्हें ज़्यादा थी, हमें इतनी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बढ़ रही है इस युवा के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे सोशल मीडिया के फीड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो देशभक्ति के काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त इफ़ आई वुड से 10 आउट ऑफ 10 था। लोग जो जितनी परसेंटेज लोगों के अंदर वो था कि हमें किसी भी हालत में हमें कैसे भी करके फ्रीडम हासिल करनी है। तो उस टाइम वैल्यू फ्रीडम की बहुत थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है, लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। That's it. अगर आपको लगता है कि जनरल डायर जैसा फिर से कोई अन्याय अगर हो तो आजकल की युवा पीढ़ी उसका प्रतिरोध कर पाएगी जैसे पहले किया गया था? उससे भी बुरा करेगी। वो तो वहाँ तक उस वक्त तो फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। इस वक्त तो हमारे साथ सामने और हमारे देश के कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी हैं, तो वो जो वो करेगी हालत वो देखने लायक भी नहीं होगा। थैंक यू सर। Hi Akshay, apologize to India. So what do you have to say about that? I think lots of things will change. I'm not here with a begging bowl to say they should say sorry, but I want them to at least watch this movie and realize the mistake. Baki the next other things will flow automatically from their mouth because it is bound. The apology is bound to happen. It will flow on its own. But I just want them to watch this film. That is what I want the British government to watch the film. I want King Charles to watch the film. Then they should see it. What happened. I'm not saying, but the rest will follow automatically. Let's hope the film leaves an impact. And Karan sir, my question to you is, how do you plan, what are your plans for release of Kesari? Because you know, films like this require a specific release strategy. So what's your strategy for bringing Kesari on the big screen? I think that this is actually the beginning of our distribution arm, as Dharma Distribution's first Hindi film will start. And I think that there can't be a better beginning. Of course, we realize we're cognizant of the times and we know. But you know, I have a feeling that when a film is this powerful and has this kind of intensity and this kind of communication to an audience, we keep putting films into boxes. ये multiplex की film है, ये single film की picture है, ये tier 1 की film है, tier 2. हम सब सोचते हैं कि हम सब समझते हैं और हम सब जानते हैं। एनालिस्ट्स बहुत हैं, कम्युनिकेट करने वाले बहुत हैं, सोशल मीडिया में सबकी ओपिनियंस हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक नेशन। बट आई वांट टू से किसी को कुछ पता नहीं कि उस फ्राइडे पे क्या होगा। ओनली एन ऑडियंस विल डिसाइड। ऑडियंस ही राजा और ऑडियंस ही मालिक और ऑडियंस ही सब कुछ। तो हम जितने भी स्ट्रैटेजी बना ले वो फ्राइडे सब कुछ बदल सकता है। And I'm quite sure ये Friday सब कुछ बदलेगा। Hello, on this side. आपको कैसे पता चला? आगे? U A. Okay. तो मुझे नहीं पता कि आप बाहर आ गई ये बात। I didn't know about this, but I presume there must be few things which they think it must be right, and I take their decision, and that's it. इसमें क्या बोल सकते हैं? We absolutely respect the censor board, and I feel that they must have seen reason, and so we accepted the certificate absolutely immediately without any cuts. There were no cuts.